Welcome to Quality Branding Hub. The channel is for the quality control engineer, site engineer and the civil engineer who are working in the construction field. ये चैनल में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, कंस्ट्रक्शन के बारे में, कंस्ट्रक्शन का मटेरियल के बारे में, कंस्ट्रक्शन का प्रोसीज्योर, क्वालिटी कंट्रोल के प्रोसीज्योर और क्वालिटी कंट्रोल के बारे में, और साथ साथ में एज ए क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर और एज ए क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर कैसे अपना करियर और भी आगे लेके जा सकते हैं, इसके बारे में भी बात करते हैं. सो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट दैट 6 powerful tools or 6 powerful hacks or the tips for the quality manager to maintain the quality at the project site, because they are directly responsible for the project quality. So today's video all about the quality manager, how they will maintain the quality and how they will ensure that all the product are delivered as per the project requirement. So stay tuned until then to get the full information, and if you are new in my channel, kindly subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I upload a new video you will get immediate notification. So without wasting time, let's jump into the subject, that is 6 powerful tips for quality control manager in the construction. What happens, the quality control manager are the responsible for overall quality of the projects or quality of the construction site. So what he need to do, there are so many works, there's a deadline, there's a work pressure, there's a consultant pressure, there is a subcontractor pressure. So pressure from everywhere is come to the quality manager to deliver the project on time and also as well as per the quality requirement. So what they need to do, I have a 6 simple formula that every quality manager can imply in their projects and so they can get the success. So what is the first formula? That is master the relevant IS codes and standard. Now what is this? See, whenever we are working in India, it is that relevant IS code is Indian Standard Code. So it is important that you should know as a quality manager every Indian codes, whatever the requirement for the projects. Suppose you are doing the concreting work. Now if you are not well aware about the concreting IS code, then you cannot deliver the product as per the requirement. So फर्स्ट यू नीड टू नो द मास्टर द रेलिवेंट आईएस कोड्स और स्टैंडर्ड. ऐसा हो गया कि ब्रिक वर्क हो रहा है और आपको मालूम नहीं ब्रिक वर्क का क्वालिटी क्या है, उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है, उसका मोटर का स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, मोटर परसेंटेज कितना होना चाहिए और कौन सा आईएस कोड फॉलो करने का है. सो एज ए क्वालिटी मैनेजर अगर आपको ये चीज़ मालूम नहीं है तो आप जाके प्रोडक्ट को डिलीवर नहीं कर सकते. तो एज ए क्वालिटी मैनेजर अगर आपको सक्सेस चाहिए इन द प्रोजेक्ट्स और इन योर करियर, फर्स्ट आपको रेलिवेंट आईएस कोड और स्टैंडर्ड के बारे में जानना है. अ क्वालिटी मैनेजर मस्ट हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ आईएस कोड, से फॉर एग्जांपल आईएस 456, आईएस 383, आईएस 516 एटसेट्रा, टू एंश्योर कंप्लायंस एंड मेंटेन यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑन साइट. क्या होता है ना, सपोज आपका जो कंक्रीट है, कंक्रीट का ग्रेड है M35 और M40 वाट एवर. नाउ इसका जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो एज पर आईएस कोड है कि नहीं, इसका जो सीमेंट का परसेंटेज है, सीमेंट कंटेंट है, वो एज पर आईएस कोड है कि नहीं, दैट क्वालिटी मैनेजर हैज़ टू एंश्योर. और जब कंस्ट्रक्शन के में हो रहा है, जब कंक्रीट आ रहा है साइड में, उसका स्लैम टेस्ट, उसका क्यूब टेस्ट, उसका अगर बीम टेस्ट और फ्लेक्चर स्ट्रेंथ, जो वाट एवर, अगर क्वालिटी मैनेजर को ये सब चीज़ मालूम नहीं तो क्वालिटी मैनेजर सक्सेस नहीं हो सकता है. सो एग्जाम्पल क्या है, बिफोर अप्रूविंग कॉन्क्रीट मिक्स रेफर टू IS 10262 फॉर मिक्स डिजाइन एंड IS 456 फॉर द स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट. नाउ ये सब जानने से तो प्रोजेक्ट का अच्छा ही हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट का जो क्वालिटी पैरामीटर है वो तो एश्योर हो जाएगा. तो प्रोजेक्ट इज हैप्पी, consultant is happy, client happy, and the organization is also happy. Now, how it will impact in the career of a project quality manager? See, this positions you as a reliable authority in construction quality and enhances your credibility with engineers, consultant, and clients. Now, all we are as a personal brand. Whether you believe it or not, we are all carrying our persona. Who am I or who you are, that is all and everything in this domain, in the quality control or in the career. Who you are, that is your, what is your persona, what is your position, that is everything. So whenever you are delivering a project within a time, within a डिजायर्ड क्वालिटी, क्या होता है ना, आपका क्रेडिबिलिटी ज़्यादा हो जाता है. सो आपका करियर में इसमें इम्पैक्ट होता है, आपका करियर एक्सेलरेट हो जाता है. सो इफ़ यू थिंक ओनली दिस वे, आप अगर ऐसे सोच रहे हो कि
प्रोजेक्ट का क्वालिटी अच्छा होगा तो प्रोजेक्ट अच्छा हो जाएगा, कंसल्टेंट खुश हो जाएगा, हमारा कंपनी खुश हो जाएगा, क्लाइंट खुश हो जाएगा। इट्स नॉट ओनली दैट, आपका करियर में भी ये इम्पैक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट हैक्स इज फॉर योर करियर इम्पैक्ट दैट एज ए क्वालिटी मैनेजर यू नीड टू मास्टर द रेलिवेंट आईएस कोड एंड द स्टैंडर्ड। अगर आप इंडिया में काम कर रहे हो तो आईएस कोड का फॉलो अप करना ही पड़ेगा और उसको इंश्योर करना पड़ेगा और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा इन द प्रोजेक्ट में टू deliver the product as per the requirement. The next is that implementing standardized checklist and ITP. Now क्यों ये इंपॉर्टेंट है? सी, अगर चेकलिस्ट नहीं है मेरे पास, आईटीपी नहीं है मेरे पास, हम जस्ट, क्या होता है ना कि हम सड़क पे चल रहे हैं, हमारे पास कोई व्हीकल्स नहीं है, तो हमारा व्हीकल सेफ्टीज क्या है और कैसे इसको सड़क को पार करने का है, तो हम जानते नहीं है। तो क्या करना पड़ता है, हमको वो रूल्स मालूम होना पड़ता है और रूल्स के मुताबिक हमको काम करना पड़ता है। तो आईटीपी क्या होता है? आईटीपी होता है इंस्पेक्शन और टेस्ट प्लान। तो आईटीपी बारे में अगर जानना है डिटेल्स में, मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई, वो आप चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। पर आईटीपी इज द कौन सा स्टेज में आपको क्या क्या इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट इंस्पेक्शन इट इज नॉट पॉसिबल टू डिलीवर द प्रोडक्ट एज पर द रिक्वायरमेंट। सो आपको क्या है ना, इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। पर कभी इंस्पेक्शन करने पड़ेगा, हर टाइम इंस्पेक्शन करने पड़ेगा ना। सपोज ब्लॉक वर्क हो रहा है, तो ब्लॉक वर्क या ब्रिक वर्क हो रहा है, कौन सा स्टेज में इंस्पेक्शन करना पड़ेगा? जब आपका सरफेस चालू कर रहा है तो वन लेयर, दैट इज कॉल्ड द लेआउट। उसके बाद जब काम हो रहा है उसके एवरी लेयर, मान लो कि एक दिन में 1 मीटर करने है या 1.2 मीटर, वो चेक करना है। उसके बाद बीम कॉलम जंक्शन में हमने ब्लॉक वॉल टाइल्स दिया कि नहीं दिया, मेश लगाया कि नहीं है, दैट ऑल आपको चेक करने का। तो एज ए क्वालिटी मैनेजर यू नीड टू स्टैंडर्डाइज आईटीपी एंड साथ साथ में आपको चेकलिस्ट भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर साइट में जा रहे हो तो आपके पास अगर चेकलिस्ट नहीं है तो आप क्या चेक करोगे? आप जाके एक एक करके टिक करने का है। हाँ, सरफेस प्रिपरेशन हो गया, वन लेयर ब्लॉक वर्क हो गया, डायमेंशन चेक हो गया, डायगोनल चेक हो गया, वॉल टाइल्स लगाया। सो ये आपका चेकलिस्ट बराबर होना चाहिए। सो एज ए क्वालिटी मैनेजर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? प्रिपेयर इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान एंड एक्टिविटी वाइज चेकलिस्ट टू एंश्योर वर्क्स आर एग्जीक्यूटेड एट वेरीफाइड स्टेप बाय स्टेप। सो आपको इंश्योर करना है कौन सा स्टेप में क्या इंस्पेक्शन करना पड़ेगा और उसके लिए क्या क्या चेकलिस्ट है। सो एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? यूज अ रीबर्ट चेकलिस्ट बिफोर concreting to verify bar size, spacing, cover blocks and overlaps and also the development length or the lap length। तो ये अगर आपका चेकलिस्ट में नहीं है, आप सोच रहे हो कि हमारा तो दिमाग में है, सो दिमाग में है आपके, आई एम नॉट एग्रीइंग, आई एम डिनाइंग दैट वर्ड। बट क्या होता है ना, मान लो कि आपको 20 पॉइंट पे चेक करना है, हो सकता है कि आपका दिमाग उस टाइम ओनली 15 पॉइंट को रिकॉन्साइल कर पाया, रिमेंबर कर पाया, तो क्या होगा, 5 पॉइंट छूट जाएगा। तो इसीलिए आपको स्टैंडर्डाइज चेकलिस्ट बनाना ही पड़ेगा और उस चेकलिस्ट के दौरान आपको साइट में जाके चेक करना पड़ेगा। तो ये तो हो जाएगा फिर प्रोजेक्ट का। पर आपका करियर में कैसे इंपैक्ट होगा? आपका करियर में ऐसे इंपैक्ट होगा, सिस्टमेटिक क्वालिटी कंट्रोल, मिनिमाइज एरर एंड रीवर्क, बूस्टिंग योर रेपुटेशन एज अ प्रोएक्टिव एंड मेटिकुलस क्वालिटी मैनेजर। तो क्या होता है ना, हम अब जैसे पहले बताया कि हम लोग खुद एक ब्रांड है। एज ए क्वालिटी मैनेजर आपको भी एक ब्रांड एस्टेब्लिश करना पड़ेगा सो दैट कंपनीज कैन रिलाई ऑन यू, कि वो लोग अगर ऐसा सोचे कि ये अगर हमारा क्वालिटी मैनेजर है तो हमारा क्वालिटी इंश्योर है। तो ये जगह आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा एज ए क्वालिटी मैनेजर टू शो द रिजल्ट टू द अथॉरिटीज और द कंसल्टेंट और द क्लाइंट। तो इसलिए इस सेकेंड पॉइंट ये है कि इम्प्लीमेंट स्टैंडर्डाइज चेकलिस्ट एंड आईटीपीस। तो इसमें देखो सिंक्रोनाइजेशन क्या है कि आईएस कोड अगर फॉलो नहीं हुआ तो आप आईटीपी नहीं बना सकते हो, और आईटीपी नहीं बना सकते हो तो आप चेकलिस्ट भी नहीं बना सकते हो। सो दीज आर ऑल इंटरकनेक्टेड एंड वेल कनेक्टेड। तो फर्स्ट क्या था, आईएस कोड के बारे में जानना था, स्टैंडर्ड के बारे में जानना था, उसके हिसाब से आपको एसटीपी और आईटीपी और चेकलिस्ट बनाने का। तो थर्ड क्राइटेरिया क्या है? बिल्ड अ क्वालिटी कल्चर थ्रू ट्रेनिंग। नाउ क्या होता है कि आप अकेला क्वालिटी मैनेजर हो, बट आपके साथ तो टीम है, क्वालिटी इंजीनियर है, और क्वालिटी इंजीनियर के साथ साथ सुपरवाइजर है, साइट इंजीनियर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, सब कॉन्ट्रैक्टर है, कंसल्टेंट है, सब है। तो आप अगर सोच रहे हो कि हम तो सब कुछ बना दिया, आईटीपी बना दिया, चेकलिस्ट बना दिया, सब कुछ हो गया, तो आपका काम नहीं हुआ।
क्योंकि आपको अगर प्रोजेक्ट में एकदम 100% क्वालिटी चाहिए तो आपको एक कल्चर डेवलप करना पड़ेगा कि क्वालिटी इज पैरामाउंट, क्वालिटी इज एवरीथिंग। तो उसके लिए क्या है ना, आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। क्यों? मान लो कि आपने तो मेथड स्टेटमेंट बना दिया, आईटीबी बना दिया, चेकलिस्ट बना दिया, बहुत अच्छा है, आपका तो सब कुछ मालूम है, नॉलेज है, पर जो काम करेगा साइट में, दैट्स द वर्कर। उनको अगर वो नॉलेज नहीं है तो वो लोग गलत काम करेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? व्हाट यू नीड टू डू फॉर दैट? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज आप मान लो कि टाइल्स लेइंग इंस्टॉलेशन का काम चालू कर रहे हो, अगर मान लो और आपका इन वर्कर जो है उन लोगों को ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि टाइल्स कौन सा टाइप का टाइल्स है, टाइल्स का साइज क्या है, टाइल्स का पैटर्न क्या है, टाइल्स का वर्किंग लाइन क्या है, टाइल्स का जो एडेसिव है उसका क्वालिटी क्या है, एडेसिव का थिकनेस कितना है, एडेसिव का शेल्फ लाइफ कितना है, ओपन टाइम कितना है, कैसे पानी में मिलाता है, कैसे स्प्रेड किया जाता है, कैसे उसको प्रेस किया जाता है। दैट आर ऑल यू नीड टू डिलीवर through training to the downline or to everyone who are involving in that process. Otherwise it will happen that the worker will do some work as per their own, and that will not meet the criteria, and the non conformity will happen and your reputation will be in a problem. So क्या करना पड़ेगा? Train site engineer, supervisor and laborers on quality protocols and standard. Quality is everyone responsibility, that is everything. So आपको ऐसा कल्चर डेवलप करना पड़ेगा जी कि क्वालिटी इज एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम बॉटम टू टॉप, फ्रॉम द लेबर टू द टॉप मैनेजमेंट। बिकॉज अगर आप सोच रहे हो कि क्वालिटी ओनली क्वालिटी डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू आर रॉन्ग। इट कैन नॉट बी डिलीवर्ड the end product as per the requirement if everyone is not involved in this process. So the culture has to be developed that the quality is everyone's responsibility. तो कैसे करना है? Conduct weekly toolbox talks on topics like proper curing, concrete pouring method और plaster cake method, whatever the topics आपको ट्रेन करना पड़ेगा। And again, my videos impact or videos outcome is today how it will impacted on your career as well as the project deadline or project success, but same times your quality career also has to improve. So मेरा टारगेट क्या है आज को आपको ये जानकारी देना है कि आपको करियर कैसे आगे जा सकता है। तो कैसे आगे जा सकता है इसका करियर? यू विल बी व्यूड एज अ टीम लीडर। आप जब ट्रेन कर रहे हो तो आपको as you will recognize as a team leader and mentor, improving site efficiency and gaining managerial trust to the leadership and roles. So आपको पहले क्या हो गया था? आप पहले दो में देखिए, आईएस कोड इम्प्लीमेंटेशन, इसमें क्या हो गया था? आपका अथॉरिटी हो गया था कि आपका जो नॉलेज है, आपका जो टेक्निकल नॉलेज है, वो आपको ये हो गया कि दिस बंदा और ये बंदा क्या है, टेक्निकली साउंड है। जो बोलते हैं ना हम लोग, इसका बहुत नॉलेज है, इसका फंडा बहुत है, तो आपका वो क्रेडिबिलिटी आ जाएगा मार्केट में कि ये बंदा का टेक्निकल नॉलेज बहुत बहुत है। नाउ अभी क्या आ जाएगा? जब भी आप ट्रेनिंग देना चालू करेंगे तो एक लीडरशिप और मेंटर और एक टीम लीडर का भी आपका करियर में आपका ऊपर एक आ जाएगा आपका इम्प्रेशन। तो फंडा तो बहुत हो गया था, अभी आपने एक टीम लीडर भी बन गया। तो सोचो, आप एक फंडाबाज हो गया, आपका नॉलेजेबल हो गया, आप भी टीम लीडर भी हो गया, तो आपका करियर इंप्रूवमेंट और एडवांसमेंट होगा ही होगा अगर आपने ये इम्प्लाई किया आपका प्रोजेक्ट में एज वेल एज आपका करियर में। तो नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, टेस्ट रिपोर्ट टू एनसीआर। नाउ as a quality control engineer or quality control manager, it is important to document everything. Why? Because without data you are nothing. Now in today's world the data is everything. Now how you can collect the data? You can collect the data by maintaining the document or maintaining the record. Without maintaining the record or without maintaining the data, it is not possible to get success in the construction. Suppose you have a cracks generating in your concrete. Now without data, that when the concrete has done, from where the concrete has come, what was the slum, what was the curing method, what is the pouring method, what is the time consuming, so all this data you need.
to come with a solution or come out the root cause. So that is why you need to document everything. And if you cannot document properly, it is impossible to give the output or give the solution for the problem, because in the site, in the projects, the problem will come every time. Now you as a quality manager, you have to give the solution. तो कैसे आपको solution देना है? आपके पास अगर डेटा है तो आप ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा आप सॉल्यूशन दे सकते हो. तो इसीलिए यू नीड टू डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, दैट इज आइदर इट इज टेस्ट रिपोर्ट और द एनसीआर, वट एवर इट इज, यू नीड टू document everything in order to give the result or in order to give the solution. So how we can make that? Always maintain a evidence-based documentation, material approval, cube test report, site inspection, and NCR. That is, so I can take an example that plaster develops cracks. Already discussed. Your NCR and root cause analysis report will protect you from blame and help identify the accountability and the problem, and you can give the solution also. Now again, how you can impact it, or you can use this as your career growth. That proper documentation build transparency and professionalisms, earning your client confidence and reducing legal risk. Now legal matter is always important. You need to always about the legal mitigation. So अगर डॉक्यूमेंट आपके पास बराबर है तो आपका लीगल रिस्क कम है. तो जब आप ये डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर अवे फ्रॉम द लीगल रिस्क. तो ये आपका ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोफेशनलिज्म बिल्ड होगा इन द आई ऑफ क्लाइंट एंड द कंसल्टेंट. सो आपका फंडावाज भी आप बन गया, आप टीम लीडर भी बन गया और आप प्रोफेशनल भी बन गया. तो चारों में से आप अगर इम्प्लीमेंट करोगे तो not only in your project but also it will help for your career growth. The next is coming, focus on preventive action, not just correction. क्या होता है, साइट में प्रॉब्लम आता है, आपने आईएस कोड फॉलो किया, आपने आईटीपी बनाया, मेथड स्टेटमेंट बनाया, आपने ट्रेनिंग दिया, आपने डॉक्यूमेंट भी एप्लीकेशन किया, फिर भी ऐसा कुछ आता है जो आपका रूट नॉन एनसीआर आ जाता है. तो एनसीआर आ जाने से घबराने का कोई बात नहीं, आपको रूट कॉज एनालिसिस करना पड़ेगा. और रूट कॉज एनालिसिस इसलिए करना पड़ता है कि नॉट ओनली गिव द करेक्टिव एक्शन, द इमीडिएट सोल्यूशन, उसके लिए नहीं, और किसके लिए होता है कि क्यों हुआ. तो उसके हिसाब से आपको मान लो कि कंक्रीट में क्रैक आ रहा है, तो आपने रूट कॉज एनालिसिस किया करके जाना कि क्यूरिंग इनएडिक्वेट है, तो आपने क्यूरिंग मेथड को डेवलप करने का, सो दैट द क्रैक्स विल नॉट जनरेट. तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्यूरिंग मेथड को और डेवलप करेगा, सो दैट विल बी द प्रिवेंटिव एक्शन. मे बी आपको ट्रेनिंग ज़्यादा करना पड़ेगा, मे बी आपको चेक पॉइंट ज़्यादा करना पड़ेगा. सो ऑन दैट बेसिस यू आर ensuring that cracks will not generating in other areas also. That is called the preventive action. So as a quality manager, you need to always be open to give the solution for the preventive action. How? Don't wait for the defects to happen. Use preventive quality control through mock-up, sampling and audit. So आप ऐसे वेट करोगे कि हाँ प्रॉब्लम आ जाएगा तो हम सॉल्व करेंगे, तो यू बिकम द रिएक्टिव पीपल. तो आपको क्या है ना, आपको प्रोएक्टिव है ना. तो प्रॉब्लम आने से पहले ही आपको एसेस करना है कि दिस प्रॉब्लम कैन जनरेट, और उसके हिसाब से आपको सॉल्यूशन देना है. सो यू नीड टू अ वेरी प्रोएक्टिव पर्सन. सो एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, व्हाट आर द एग्जाम्पल? यूज ट्रायल मिक्सेस बिफोर एक्चुअल कंक्रीट कास्टिंग्स एंड रेक्टिफाई मिक्स यूजेस दैट ड्यूरिंग मॉकअप एंड टेस्टिंग. सो अगेन एक करियर ग्रोथ में आपको कैसे इंपैक्ट करेगा? This proactive approach save cost, time, and build your image as someone who adds value beyond inspection. See, any projects, what are the goal? That is, the project will deliver on time, with quality and budget. Now, if you are as a proactive person are helping them to shape their goal, so they will think that you are a proactive person, and your professionalism will be developed, and they will value you as a professional or as a quality control manager. So you need to be very much proactive so that you can find out whatever the problem can arise before actual it is happening, and then adopt technology and quality management. Nowadays is a digital era, and now if you are again thinking about the 20 years back or 50 years back mentality, you are like a dinosaur.
तो नाउ इस डिजिटल एज में आपको डिजिटाइजेशन भी करना पड़ेगा, आपको टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ेगा इन योर प्रोजेक्ट्स। और अगर आप ये नहीं कर सकते हो, नॉट ओनली द प्रोजेक्ट्स, your career also will be a problem. So what happens? Leverage tools like quality management apps, QR coded material tracking, or drone based visual experiment. So whatever the technology you have, that you need to use for your projects as a quality control manager or for the quality, so that it can be helpful for your projects. If suppose now this all checkpoint has become digitalized, no need to carry the hard copy of the checklist. You can carry the tab, or you can carry your mobile, and whenever you go tick 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 and everything is okay, you just submit and it will circulate to each and everyone. So everything now is digitalization, so you need to be tech savvy and technology adaptation mentality, otherwise you will be a dinosaur. So example, you can take use software like Procon, Filter, or PlanGrid, ERP software, or SAP. That is all quality checks and instantly share with stakeholder. So again, how it will impact your career? This modern age sets you apart from traditional managers and position you for senior roles in tech-enabled companies. So nowadays, everyone is asking for the someone who are technology adapted or who knows about the technology. So this will help you others to eliminate from your race. So these are all about the 6 hacks or the powerful tips for the quality manager for their career success. So what that the summarize, master the relevant IS code and standard, implement standardizers and checklist and ITP, build a quality culture through training, document everything, test report to NCR, focus on preventive action, not just correction, and adopt technology for quality monitoring. So I hope you find it useful, and my humble request, apply them on your project as well as your career enhancement, and I believe that you will get the success. So how you like this one and what is your takeaways? Please share in the comment box. I will read each and everyone comments, and from your comment also every other will also be happy, and other will also get inspiration. So what are you waiting for? Just share your takeaways, and if you want to know anything more about quality control and construction, please let me know. I will come with more content like this. And thank you once again for watching me. And if you are not subscribed my channel, kindly subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I upload a new video, you'll get immediate notification. And thank you once again